Good morning, my lovely students. How are you all? I hope you all are safe and healthy at home. So, dear students, as we have started our chapter number 11 and almost this chapter is completed, today we will complete this chapter and tomorrow we will start our chapter 12. This is the last chapter of macroeconomics as well as this unit. BOP, balance of payment. So first of all, a fast recap we will take of all the points, all the topics that we have completed in the previous videos. We have chapter 11, foreign exchange rate. As we completed foreign exchange rate, meaning of foreign exchange rate, foreign exchange, types of foreign exchange rate, that is flexible, how it impacts the foreign exchange rate when demand increase, when demand decrease, supply increase, supply decrease. 4 cases we have completed successfully. Then after we have completed appreciation of domestic currency, differentiate between both appreciation and depreciation of domestic currency. We have completed fixed exchange rate, which is decided by the government. Then after yesterday we have completed in the video devaluation and depreciation. So first of all, depreciation means beta, it is that situation which is occur because of demand supply of the मार्केट इट अपियर्स. डेप्रिसिएशन जो होता है वो मार्केट फोर्स की वजह से होता है और डिवैल्यूएशन वो गवर्नमेंट जानबूझकर करती है. ओके, सेम एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन. एप्रिसिएशन मार्केट फोर्स की वजह से होता है, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर मार्केट फोर्सेस, बट रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझकर करती है. ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कल हमने पढ़ा है इसके बारे में. देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड ब्रेडन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड अलोंग विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड देयर डिफरेंसेस. सो today we are going to start our new topic, that is managed floating, and a very important topic for the point of view of examination, because this question can be asked in the examination, board examination of 12th class. Yes beta, managed floating. Yes, as we know there is a two type of exchange rate. हमने दो तरीके के exchange rate पढ़े हैं. First is flexible, जिसे मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस है, वो कंट्रोल करती है. सेकंड वी हैव स्टडीज अबाउट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मीन्स विच इज़ डिसाइड बाय द गवर्नमेंट. बट व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग? What is managed floating? Dear students, sometimes when the exchange rate highly increased and no one is control the things, it means market forces are not able to control it. ये normally flexible exchange rate में होगा. when demand increases so high, so exchange rate increases very high. अब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए एक्सचेंज रेट, तो बोथ कंडीशन आर नॉट गुड फॉर द कंट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दोनों ही हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इम्पैक्ट करती है. यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट टू थिंग्स, कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज आपका इंक्रीज़ होगा, सो एक्सपोर्ट्स उसके साथ इंक्रीज़ होंगे और इम्पोर्ट्स उस टाइम पर क्या होंगे, कम होंगे. बट अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे लेकिन इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे. सो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का. बट अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल हैं तो उस कंडीशन में RBI हैज़ द पावर टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट. ओके, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की पावर RBI के पास होती है, सो दैट इट विल नॉट स्लिप अंडर द डिज़ायर लिमिट. जो लोग चाहते थे, जो प्रॉफिट्स के पर्पज से काम करते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा. और मैनेज फ्लोटिंग को वो डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो जितना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं वो प्रॉफिट उन्हें हो नहीं रहा है. सो आपके माइंड में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. फ्लेक्सिबल डिसाइड बाय द मार्केट फोर्स, फिक्स्ड डिसाइड बाय द गवर्नमेंट. बट what happens to flexible exchange rate when it is not controlled by the normal condition? जब normal condition में ये control नहीं होता है, then RBI has to intervenes to manage the exchange rate so that it does not slip out of the desired limit. So it is known as managed floating. अब ये कैसे करता है RBI? So in the next question we will study about that. Yes, dear students, here is the point. How does the central bank exercise its influence on float or market exchange rate? So very easy to understand. Yes beta, first of all, rate of exchange कब increase होता है? Rate of exchange increase तब होता है when the demand increases. डिमांड जब बहुत ज़्यादा होती है या सप्लाई कम होती है. अल्टीमेटली बोथ कंडीशन आर सेम. डिमांड ज़्यादा है, एक में सप्लाई कम है तो भी डिमांड ज़्यादा होगी. व्हेन डिमांड इज़ मोर, इट मीन्स यू कैन टेक एन एग्जांपल.
there are the supply of 100 foreign exchange. ओके, $100 की सप्लाई अपनी कंट्री में, बट पीपल आर डिमांडिंग फॉर $110. डिमांड कितनी है? 110. अब इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? एक्सचेंज रेट तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो सप्लाई सिर्फ $100 है और डिमांड अपनी कंट्री में $110 की हो रही है. उस कंडीशन में बेटा आरबीआई विल सेल आउट द फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. जहाँ से इंडियन फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हैं, जिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई क्या करेगा बेटा? आरबीआई विल सेल द एक्सचेंज रेट. सेल करेगा. सेल करने से एक्सचेंज सेल करने से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. इट विल बी इक्वल्स टू 110 और डिमांड 110 है और इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट होगा. ओके, तो इट मीन्स जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो आरबीआई सेल करेगा. और व्हेन द सिचुएशन इज चेंज, सिचुएशन चेंज मीन्स here is RBI and supply is $100 in the economy, but the demand is only 80. डिमांड इज शॉर्ट देन द, तो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट कम हो जाएंगे. उस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा बेटा? $20 परचेज कर लेगा मार्केट से. ठीक है, अपने पास रख लेगा रिजर्व में जब भी ज़रूरत होगी. ठीक है, अब 80 इक्वल्स टू कितना हो गया? 80. क्लियर? तो सिंपल दो ही चीज़ें याद रखनी है हमें कि जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो आरबीआई विल सेल द फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट. सेल करेगा जिससे लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज आए और वो डिमांड थोड़ा कम कर, मतलब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाए. एंड सेकेंड, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड, और दैट टाइम आरबीआई विल परचेज द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द मार्केट सो दैट डिमांड विल बी इक्वल्स टू सप्लाई और इक्विलिब्रियम हो जाएगा. ओके, सो जस्ट रीड ऑल द पॉइंट्स वेरी केयरफुली इन योर नोटबुक. Yes dear students, so next is why people are demanding for foreign exchange. Indians को foreign exchange की ज़रूरत ही क्यों है, या कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. आप ये बताइए हमें मनी की ज़रूरत क्या होती है? टू बाय द एसेंशियल गुड्स फॉर आवर लाइफ, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. तो इसीलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत होती है. फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. इट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट और एनी पर्सन टेक्स लोन फ्रॉम द अदर कंट्री और वर्ल्ड बैंक, सो फॉर द पेमेंट, उस लोन की रीपेमेंट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन इंडियंस आर रेडी टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्री, जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री में तो उसी कंट्री की करेंसी चलेगी जिस कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो हम इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करवाएंगे किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में. इम्पोर्ट्स, अगर हम कुछ सामान बाहर से खरीद रहे हैं सो उसकी पेमेंट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. डायरेक्ट परचेज, सपोज वी आर गोइंग फॉर ट्रिप्स और विजिट इन अदर कंट्रीज़ फॉर द रिफ्रेशमेंट और लाइक फॉर द हॉलीडेज़, तो वहाँ हम रहेंगे तो वहाँ हम होटल और बाकी नेसेसरी जो भी नेसेसरी थिंग्स है, फूड आइटम्स और बाकी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उनकी पेमेंट हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज ही की ज़रूरत पड़ेगी, उसी करेंसी में करना पड़ेगा जिस कंट्री में हम हैं उस टाइम. ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री को ग्रांट्स या डोनेशन देती है तो फ़ॉरेन एक्सचेंज वी नीड. पेमेंट ऑफ इनकम्स, बहुत सारे इंडियंस हैं जिनका बिजनेस सेटअप है, जो बिजनेस यूनिट्स हैं दे आर ऑपरेटिंग इन द अब्रॉड, दूसरी कंट्री में वो उसे चला रहे हैं. सो फॉर द पेमेंट, वहाँ पेमेंट करने के लिए दे नीड फॉरेन एक्सचेंज. अब जैसे होंडा प्लांट है, इट इज़ द जापानीज़ प्लांट एंड मैनी इंडियंस आर वर्किंग इन दिस प्लांट. बहुत सारे इंडियंस इसमें काम कर रहे हैं एंड जापानीज़ जो मैनेजमेंट है दे आर पेइंग सैलरी इन इंडियन रुपीज़, क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपीज़ चलेंगे तो दे डिमांडिंग फॉर द इंडियन रुपीज़. दैट इन द सेम वे व्हेन इंडियंस ऑपरेटिंग देयर बिजनेस इन अब्रॉड, वो दूसरी कंट्री में जब अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, वहाँ ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ जो फॉरनर्स वर्क कर रहे हैं उनकी पेमेंट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग्स फॉर हॉर्स राइडिंग, फॉर द एनी काइंड ऑफ थिंग्स आप लगाओ जिसमें शेयर मार्केटिंग और इस सब में हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि वी आर डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम अब्रोड. अब दूसरे देश से हम सामान डिमांड कर रहे हैं, वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, सो वी नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री. जहाँ से हम बाय कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसी कंट्री की करेंसी हमें चाहिए. सो इंडियंस डिमांड फॉर सेवरल रीजन्स for the foreign exchange. So now next is what are the components of supply. अब हमारे पास foreign exchange कैसे आता है? What are the sources of foreign exchange in India? Exports, we Indians export many things to the abroad, और वहाँ से जो करेंसी आएगी वो इंडियन करेंसी, वो foreign exchange आएगा हमारे पास. Yes बेटा. Next, investment from rest of the world. Many investors invest money in India, so that investment is
also part of foreign exchange. Then after direct purchase by rest of the world, जो foreigners अपने इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, सो दे मेड पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज. लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब भी हम फॉरेन किसी भी अदर कंट्री से लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज ही मिलेगा. ओके. ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेम दूसरी कंट्री से जब हमें डोनेशन या ग्रांट्स मिल रहे हैं तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज ही होगा हमारे लिए. income receipts means Indians are working, तो many types of payments given by the foreign other countries in foreign exchange. Remittance by the non residents, बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर रहकर अर्निंग कर रहे हैं और वो अपने जब इनकम को अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए इंडिया में भेजते हैं, सो इट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज. वो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट RBI उन्हें एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देता है. तो इट मीन्स सपोज़ कोई पर्सन इंग्लैंड से अगर इंडिया में घूमने के लिए आया, सो ही विल कैरी हिज ओन करेंसी, वो अपनी करेंसी साथ लेकर आएगा और फिर जो एक्सचेंज डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मनी एक्सचेंज करते हैं वहाँ पे उसे वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराएगा, क्योंकि इंडिया में तो घूमने के लिए हमें इंडियन करेंसी चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर द सेवरल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. बहुत सारी ऐसी रीजन्स हैं जिनके लिए इंडियंस डिमांड करते हैं और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलती है. सो नाउ टुडेज़ लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा एक सब्जी मंडी क्या होती है, तो आप पता है मुझे आंसर क्या क्या दोगे कि मैम फ्रॉम वेयर वी आर परचेजिंग वेजिटेबल्स. क्लॉथ मार्केट क्या होती है, जहाँ से हम क्लॉथ्स परचेज करते हैं. बुक्स मार्केट क्या होती है, जहाँ बुक्स हम परचेज करते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स वेयर वी सेल एंड बाय फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ सेल और परचेज होते हैं फॉरेन करेंसीज, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है. और ये हमें 3 टाइप्स के फंक्शन प्रोवाइड करवाती है. ट्रांसफ़र फंक्शन, इट मीन्स एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करती है. क्रेडिट फंक्शन, ये हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है. एंड हैजिंग फंक्शन मीन्स प्रोटेक्शन. 2 कंट्री आपस में दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर करेंसी, अब उनके बीच में जो भी कुछ क्लैश है या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सॉर्ट इट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स. सो देर आर द 3 फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स वेयर सेल, वेयर फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन करेंसीज और फॉरेन एक्सचेंज सेल एंड परचेज, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी सेल परचेज होती है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं. बेटा इट हैज़ 2 टाइप्स, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट मार्केट मीन्स विच डील्स इन डेली ट्रांजेक्शन्स, फ्यूचर के लिए नहीं, दे डील्स इन करंट ट्रांजेक्शन, इमीडिएट ट्रांजेक्शन, जो टोटल ऑन द स्पॉट डील्स करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होता, करंट ट्रांजेक्शन पर जो ध्यान देते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट. ओके. एंड फॉरवर्ड मार्केट, जैसा नाम से ही पता है, दे डील्स इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो फ्यूचर के लिए जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन बोलते हैं और वो फॉरवर्ड मार्केट में होती है. ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड करंट मार्केट. भाई व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ. स्पॉट मार्केट इट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है. एंड फॉरवर्ड मार्केट इट मीन फॉर द फ्यूचर डिलीवरी, ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है. रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन इन द मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. दिस मार्केट में जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होगा वो ऑन द स्पॉट होता है, तो उसे स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. ओके. एंड इन द फॉरवर्ड मार्केट जो भी रेट डिसाइड होगा इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट. ओके. इट डज़ नॉट अलाउ हैजिंग, इसमें हैजिंग फंक्शन नहीं होता बिकॉज देर इज़ नो डील फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर की बात ही नहीं है तो प्रोटेक्शन की बात नहीं है. करंट ट्रांजेक्शन्स है, सो स्मूथली वी कैन जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. और जब फ्यूचर की बात होती है तो वी नीड हेल्प, वी नीड प्रोटेक्शन, तो फॉरवर्ड मार्केट में हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन in your fair notebook, and beta read carefully. God bless you. Stay blessed at home.